and all my dear friends. Flowers depict love and affection to the guest. So we start with welcoming the guest with flowers. I will request Madam Sukhvinder Kaur to do the honors and offer a bouquet of flowers to our chief guest, Dr. Bhagwat Karat. A huge round of applause, please. Madam, flowers also to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. I would request DGM SBI Naveen Kumar Gupta to offer flowers to Mr. N.G. Nambutri, General Manager RBI. And to Madam Usha Ramesh, General Manager NABARD. Thank you. I will now invite Madam Sukhvinder Kaur to formally welcome the dignitaries and deliver her keynote address. Madam, you can speak from there. No issue. Respected Dr. Bhagwat Karat, Honorable Minister of State for Finance, Government of India. Respected Shri Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. Shri N.J. Nambutri, General Manager, OIC Reserve Bank of India, Goa. Shrimati Usha Ramesh, General Manager, NABARD, Goa. Senior executives from commercial banks, representatives of cooperative banks and all other participants, and all the other guests and all the other customers of various banks who are present here, as well as the HSCs who have put their stalls here with their wares around. Good afternoon and a very warm welcome to one of its own kind of outreach program, the credit outreach program, sir. Sir, this is the first time like we are doing it. Apart from the credit outreach program, we have the SSGs also having their stalls around here. So this is a unique program and it is a privileged one because we have among us two doctors, right? Dr. Karat and Dr. Sawant around here, sir. Sir, as an SLBC convener, I submit that banks of Goa have been reaching out to customers to increase the credit outflow by conducting camps. Banks in Goa held outreach and financial literacy camps in villages in Panchayat. Around 102 camps were organized during the month of October. And so during the day we had an SLBC meeting also here with where Dr. Karat was there. And there a point came up that apart from the financial literacy, we have to tell the customer about cyber crimes also, how the people are getting into cyber crimes. So we have taken note of that. And going forward, we'll make it as an agenda item for our literacy camps also. So we'll be telling the customers how to avoid phishing and cyber crimes. So in this outreach program, we'll be handing over letter of sanction letter to for the loans which we have sanctioned here. So around 11 crore of disbursements we are. Around 11 crore of disbursements and sanction letters will be given here. So I would request all my member banks to hold more of such camps, right? And we as a banker have a responsibility towards the society, give back to the society which is giving us. So once again I welcome all present here. And once again, sir, thanks to Dr. Karat and Dr. Sawant for gracing us with your presence around here. Thank you, sir. Thank you, madam. I would now request the chief guest of today's function, the Honorable Minister of State for Finance, Government of India, Dr. Bhagwat Karat. Sir, please address the gathering. आज
गोवा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के टाइम उपस्थित गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जी, इस कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया, ऐसे स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर कौर मैडम, इस कार्यक्रम के लिए जिनकी प्रमुख उपस्थिति है, ऐसे आरबीआई के जीएम श्री नंबूतिरी जी, उन्हीं के साथ नाबार्ड के जीएम मैडम उषा रमेश मैडम, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ एसबीआई श्री गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बैंक के अधिकारीगण, प्राइवेट और नेशनलाइज बैंक के अधिकारीगण, उन्हीं के साथ बैंक के ऑफिसर्स, पत्रकार बंधु भगिनी और साथियों, मैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस से हमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में जाके दौरा करें और वहाँ का सिचुएशन समझ लें। उसी तरह वो दौरा होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हर स्टेट में जाना, वहाँ का बैंकिंग समझ लेना, वहाँ के जो अलग अलग प्रधानमंत्री के नाम से जो अलग अलग स्कीम है वो समझ के लेना, और वैसा पेनिट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसा हो, गरीब को मदद कैसे मिली, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। आते ही हर स्टेट में एक स्टेट लेवल बैंक कमेटी की एक मीटिंग रखी है। आने के बाद मॉर्निंग 10:30 से 1:30 बजे तक, 1:30-2 बजे तक हमने मीटिंग की, और ये मीटिंग के लिए होने के बाद मुझे आपको बताने के लिए हर्ष हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, गोवा का जो सिचुएशन है, जो बहुत सारे स्टेट से काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे पास नेशनलाइज बैंक के नेशनलाइज लेवल पे, नेशन लेवल पे हर स्टेट में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए बैंक कितना होना चाहिए, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए एटीएम कितना होना चाहिए, सीडी रेशो क्या होना चाहिए, काशा रेशो क्या होना चाहिए, इनका मैं फिगर लेके आया था। और आने के बाद जब मैं यहाँ देखा तो यहाँ का बैंक का पोजीशन, जो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 14 बैंक नेशनल लेवल पे अभी भारत देश में है, तो यहाँ की बैंक अच्छी तरह से है, बैंक का नंबर अच्छा है, एटीएम का नंबर भी अच्छा है। उतना ही नहीं तो अलग अलग स्कीम जो प्रधानमंत्री जी के नाम से चलती है वो भी यहाँ ठीक तरह से चल रही है, लेकिन कुछ 2-3 चीज़ों में सुधार करना की जरूरत है। उनके बारे में मैं बैंक ऑफिसर से मीटिंग लिया, और उसी में पहला मैं बताना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट हमारे गोवा में कम है, तो सब बैंकर्स के साथ मेरा डिस्कशन हो गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर थे, आरबीआई के लोग थे, नाबार्ड के लोग थे, और पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के पूरे अधिकारी थे, 40-50 पूरे अधिकारी थे। और उन्हीं को मैं बता दिया कि जनधन अकाउंट गोवा में कम है तो बढ़ना चाहिए, और उसी लिए उनको वन वीक में एक मेला आयोजित करके उसमें को काम करना चाहिए। तो उन्होंने जनवरी, बराबर ना मैडम, दिसंबर में, जनवरी के फर्स्ट वीक में गोवा के हर तालुका, हर लेवल पे मीटिंग हो जाएंगी, हर बैंक में मेला लग जाएगा, जितना यहाँ ब्रांचेस है, और उधर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इसलिए वो काम करने वाले हैं। उसी तरह यहाँ 3 चीज़,
एक रुपी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जनधन अकाउंट के साथ, जैसे जनधन अकाउंट खोलता है उसी साथ रुपी कार्ड हम देते हैं, वो भी बढ़ना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, ये 3 चीज के लिए मैंने बोला है। और यहाँ के पूरे बैंक अधिकारी मिलकर जनवरी के फर्स्ट वीक में काम करने वाले हैं। इतना होने के बाद मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, इसलिए कि यहाँ जो कुछ उद्योग है वो उद्योग भी अच्छे चल रहे हैं, जिसमें फिशरी हो, कैशूनट हो, मैंगो हो, जैकफ्रूट हो, वो भी अच्छे चल रहे हैं। और बैंक इन्हीं बिजनेस के लिए अच्छी तरह से लोन भी दे रही है। प्राइमरी सेक्टर में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। और इतना ही नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक स्कीम निकली है, जिसकी जानकारी मुझे मिली। और ये स्कीम में से वुमन अगर बिजनेसमैन करना चाहती है, लेडीज, तो लेडीज के लिए 3% से लोन मिलता है, और पुरुषों के लिए 4% से लोन मिलता है, जिसमें 10% सब्सिडी भी है, 10% फ्री लोन भी मिलता है। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि ये स्कीम की वजह से यहाँ के लोग बैंक में आके लोन लेते हैं और उनको ये भी हो रहा है। इतना सब जानने के बाद मैं एक ही चीज मैं करना चाहता था। यहाँ पूरे हमारे देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हो जहाँ विकास नहीं हो चुका है, मागास डिस्ट्रिक्ट हम लोग। तो यहाँ गोवा में जो डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों भी अच्छे हैं, कोई मागास डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए इधर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक ही मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ जाने के बाद फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में चर्चा करता हूँ। तो आज हम यहाँ आने के पहले ही फाइनेंशियल लिटरेसी वैन का इनोग्रेशन किया, और मुझे लगता है ये वैन आप नाबार्ड ने दिया है, बराबर? ये अलग। एनीवे, फाइनेंशियल लिटरेसी वैन का हमने इनोग्रेशन भी किया है। ये वैन गांव में जाएंगी, शहर में गए तो या हर कॉलोनी में जाएंगी, वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों को इकट्ठा करके बताया जाएगा। इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल लिटरेसी कैसा करना है इसके बारे में बताया जाएगा, और फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस क्या ये भी बताए जाएंगे। हम मॉर्निंग में सवेरे साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा की, साइबर सिक्योरिटी के लिए इधर क्या कर सकते हैं इसके बारे में। जो एक चीज मैं यहाँ करना चाहता हूँ, तो ये गोवा ये स्टेट को डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टेट कैसा बना जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सावंत साहब से मेरी चर्चा हो गई और वो करने को तैयार है, और सब बैंकर तो तैयार है। सिर्फ नेट का प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट रहो या स्टेट गवर्नमेंट रहो, यहाँ गोवा के हर जगह इंटरनेट कैसा पहुंचे उसके लिए कोशिश करना है। अगर इंटरनेट पहुंच गया तो गोवा को हम डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टेट या डिजिटल स्टेट बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और ये अगर करेगा तो ये भारत में पहला स्टेट रहेगा जिसमें पूरे देहात रहो या शहर रहो, वहाँ सब ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से हो जाएंगे। तो ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ के बिजनेस रहो, यहाँ का पर कैपिटा इनकम रहो, यहाँ का बैंकिंग रहो, उद्योग रहो, अच्छे तरह से चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सक्षम विकासशील मुख्यमंत्री माननीय सावंत जी के नेतृत्व में गोवा एक अच्छा स्टेट बने, और अच्छा स्टेट बन के यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो काम करने वाले गरीब से लेके अच्छा से अच्छा लोगों तक सबको जो चाहे वो सुविधा मिले, और गोवा एक विकसनशील भारत देश का स्टेट रहे, ऐसा मैं उम्मीद रखते हुए आज जो एग्जीबिशन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मॉर्निंग में डिस्कशन होगा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरफ से जो एग्जीबिशन किया है, जो हमारे महिला भगिनी ने जो एग्जीबिशन किया है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैंने मालूमात लिया कि इस स्टेट में अराउंड 2500 अप्रोक्सीमेटली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं उनको भी लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से। लेकिन वो इनका कहना है वो कभी कभी वो लोन मांगते भी नहीं। तो मैं बोला फिर यहाँ का माल जरा हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा भेजो, हमारे पास मार्केट बढ़ेगा।
और वो मार्केट बनाने की जरूरत है। यहाँ काम करने को लोग तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सैचुरेशन है, थोड़ा लग रहा है, तो मार्केटिंग करने वाली टीम में हमें बढ़ाना चाहिए। मार्केटिंग कर टीम करके इंडिया, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग सुविधाएं है, तो इसमें हर अपना गोवा का जो यहाँ बनता है तो अलग भारत के देश में कैसा जाए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। उतना ही नहीं तो कुछ यहाँ से जो अच्छी चीज़ है एक्सपोर्ट कैसी होती है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब करने के लिए बैंक सेक्टर पूरा तैयार है। सिर्फ उनको थोड़ा एजुकेशन देके, यहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाएं हैं, उद्योजक है, उनको एजुकेशन देके थोड़ा एक्सपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे पूरे उम्मीद है माननीय सावंत, डॉक्टर सावंत जी के नेतृत्व में गोवा अच्छा प्रगतिशील स्टेट बन के एक डिजिटल स्टेट का पहला डिजिटल स्टेट कैसा बने, इसीलिए हम कोशिश करेंगे। मैं उन्हें अभी आते ही बात किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो जो चीज़ आपको मदद लगेगी वो पूरा हम करेंगे और गोवा एक अच्छा डिजिटल स्टेट बनने की कोशिश करेंगे। इतना शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. It was nice listening to you. On behalf of all the bankers, I assure you, sir, that we will reach every person, every corner of the state. We will open more PM-35 accounts and we will cover them under the government social security schemes. Also, we assure that we will spread digital literacy and ensure that the state is fully digitalized. Thank you, sir. Friends, as you all know, our Honorable Chief Minister has been visiting almost all corners of the state, creating awareness among the masses on various aspects. I would now request Sir to guide us, to guide the bankers and tell us how best all of us can contribute to the economic growth of the state. इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हमारे साथ में डॉक्टर भागवत कराड़, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैडम सुखविंदर कौर, GM SBI, द कन्वीनर ऑफ द SLBC, श्री NG Namobutri, GM of the RBI, then Madam Usha Ramesh, the General Manager for the NABARD, the senior executive, the banks, representative of the other cooperative banks, dignitaries on the dais and dignitaries among the audience. सगळ्यात पहिली तुम्ही नेटात ताळयो मारून डॉक्टर भागवत कराड हांगासर आयल्या, मुद्दामून जे स्टॉल लायल्या डिजिटल खरें म्हटल्यार हांवें सांगचें पडोंक जायना आसलें, पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो लोन मेळावो खंय तरी आमच्या मिनिस्टरांच्या समोर आमकां जाता, मिनिस्टरांच्या समोर आमचे स्टॉल लागता, मिनिस्टरांच्या समोर आमची डिजिटल वॅन जाता. कारण म्हटल्यार गोंयकारां खातीर एक बरी उमेदीची गजाल आसा. सगळे स्टॉल्स तांच्यांनी स्वता पळयले. परत एकदा तांच्या खातीर नेटान ताळयो मारा. तर इस कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम नो डाउट all the bankers, they are doing a very good job, they are doing an excellent job. मैं खुद 2-3 बार SLBC की मीटिंग 2.5 साल में मैंने 2 बार अटेंड की है. और जस्ट if I'll take the review and I'll say there is a very much improvement. It is in credit deposit ratio which is increased from the 32.68 ratio to the 33.48. It is a disbursement in the Mudra loan which is from the 74 crores to the 126 crores. It is an agriculture sector which is increased from 15.62 crores to 35.50 crores. Under the annual credit plan, which is achieved from the 240% of the crop loan, it is a 98% in the MSME, 50% in the prioritized sectors, including that there is a disbursement for the SC, ST and all types of loan. सही में सभी type of loan or सभी type of SLBC से initially taken they have taken the interest और सभी बैंक को इनिशिएटिव देने के बाद इतना अचीवमेंट कर सके. मुझे लगता है आपके आने के बाद इससे और भी ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. डेफिनेटली विद क्रेडिट गोज फॉर द SLBC एंड फॉर द ऑल द
bankers who work hard for the state of Goa. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी परत एकदा देठान तांकां ताळयो मारपाची गरज आसा. आमचे मुद्रा लोन आसूनी, सेल्फ हेल्प ग्रुपाची लोन आसूनी किंवा बारीक बारीक लोन आसूनी, आनी खास करून आयच्या लोन मेळाव्यांतल्यान फर्स्ट म्हाका दिसता इट इज ऑल टुगेदर 35. हाऊ मेनी पीपल वी आर डिस्कसिंग टुडे? 45 जाणांचे लोन डिस्बर्समेंट बारीक सारीक कित्या खातीर सुद्दां उरलेले आसतले. बट आज खास करून मिनिस्टर येता म्हणून तेंचे बेगीन बेगीन डिस्बर्समेंट केला. देठान एकदा सगळ्या बँक ऑफिसरांक देता सर. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली आपके सभी बैंकर्स खास करके यानी मुद्रा लोन हो, प्राइम मिनिस्टर PMEGP हो, द लोन फॉर द टेनेंट फार्मर्स, लोन फॉर द थोड़ा बहुत कंसर्न पहले मुद्रा लोन के बारे में था, थोड़ा बहुत कंसर्न इट इज अ लोन फॉर द टेनेंटेड फार्मर्स इसके बारे में था. लेकिन आई थिंक द SLBC एंड दे हैव टेकन द इंटरेस्ट एंड दे आर रिजॉल्विंग इट. लोन्स रिगार्डिंग द आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो फर्स्ट टाइम वी आर गिवन द लोन फॉर द डेयरी फार्मर्स. इससे पहले कभी नहीं दिया था. स्पेशली द गोवा स्टेट बैंक, स्पेशली आई थिंक द SBI बैंक और 2-3 बैंक्स हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार मिल्कमैन या मिल्क फार्मर्स के लिए उन्होंने लोन भी दिया और उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया. Approximately 50% of the farmers, more than 2,000 farmers have benefited by the 1,60,000 of the loan for the 1 year, and which is a 0 rate of interest. It is a very good, and the 4% which is by the government of India, and another 3% by the state government. इसलिए 1,60,000 हमने जो फर्स्ट टाइम हमारे फिशरमैन को भी यानी जो फिशिंग फार्मर्स है उनको भी हम फिशिंग क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं. दिस इज द इनिशिएटिव्स वी हैव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इससे मैं और एक बात कहूँगा, क्योंकि हर वक्त आपके सभी बैंकर्स एट प्रेजेंट पहले यानी PM जीवन ज्योति बीमा, PM जीवन ज्योति बीमा या PM सुरक्षा बीमा पहले जितना नहीं प्रमोट हो रहा था, लास्ट 1 साल में कोविड के बाद सरकार के हर कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं. खास करके हमारे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में हर एक बैंक ऑफिसर जहाँ जहाँ पे हमारे स्वयंपूर्ण मित्र सेल्फ रिलायंट गोवा बोल के जो आत्मनिर्भर भारत के हमने गोवा जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, वहाँ पे हर एक आई विल नॉट स्पेसिफिकली एक ही बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन गोवा भर में 191 ग्राम पंचायत में जहाँ पे भी हम जिस ऑफिसर्स को बुला रहे हैं, all they are coming, they are helping us into the जीवन ज्योति बीमा, PM सुरक्षा बीमा, even though PM स्वनिधि, all the schemes, even though the अटल इंश्योरेंस, इस तरह के सभी स्कीम पहली बार प्रमोट हो रहे हैं. और हमारे हर एक कार्यक्रम में द सरकार तुमच्या दारी, एट स्वयंपूर्ण युवा, एट इवन दो स्वयंपूर्ण गोवा, जिस पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है वहाँ वो पार्टिसिपेट हो रहा है. मुझे लगता है आई थिंक हमारा तो अचीवमेंट है कि 100% लोगों का इंश्योरेंस होना. और PM जीवन ज्योति बीमा और PM सुरक्षा बीमा जितना आप लोग प्रमोट करोगे. सर ने तो डिजिटल स्टेट की बात कही है, मुझे तो ये कहना है कि इफ आप लोगों का सरकार ये रहा तो 100% स्टेट इंश्योर करने का जीवन ज्योति बीमा और PM सुरक्षा बीमा, इस 2 बीमा बैंक लोग प्रमोट करने लगे तो 100% लोगों के पास जो एलिजिबल है उनके पास बीमा हो सकता है. सहकार्य सिर्फ आप लोगों का चाहिए. जितना आप लोग प्रमोट करेंगे, इट इज हार्डली द 330 रुपीज एंड 12 रुपीज. 330 एंड 12 रुपीज इन गोवा में 330 और 12 रुपीज पे करने के बाद किसी के पास कमी नहीं है. डेफिनेटली दे कैन पे. ओनली थिंग हमें उन्हें इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस बताना है, इंश्योरेंस के बारे में उनसे बात करनी है, इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस उन लोगों तक पहुंचा. और हमारे जो स्वयंपूर्ण मित्र जो हर एक ग्राम पंचायत में बैठते हैं वो उन लोगों को उनका इम्पोर्टेंस बताने के लिए तैयार है. एट प्रेजेंट इन 191 ग्राम पंचायत में हर सैटरडे द क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर वन हु इज सिटिंग इन दैट ग्राम पंचायत इज रेडी टू हेल्प यू. आप लोगों ने सिर्फ उसको कांटेक्ट करके उसको बुलाना है. और 2-3 आई थिंक द बैंक ऑफ इंडिया या समथिंग दे डिड इन द सागे टू द एंटायर द विलेज पंचायत 100% इंश्योरेंस.
तुमचं सांगेता इसी तरह से आप लोगों का सहकार्य मिला तो हमें करने में बहुत ही खुशी रही। डेफिनेटली यू पीपल विल सपोर्ट अस। सर दूसरी बात मैं बताऊंगा, आपने सिर्फ ईडीसी के बारे में बात कही, वी आर गिविंग द 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके सिवाय वी हैविंग द ओबीसी कॉर्पोरेशन which we are giving the loan at the rate of 4% rate of interest to the government. We are having the ST corporation, finance corporation, we are giving the loan at a 2% rate of interest. We are having the minority corporation, that also we are giving the loan at a 4% rate of interest. We are having besides this the startup cell, the loan to bank area, we are giving the 10 lakh rupees subsidy for the new startups which we are doing in our state. So this type of very much schemes we are doing in our own state with the help of EDC. It is there, but besides that, OBC corporation, ST corporation, minority corporation, we are in startup cells. We are promoting various business activity in our state. सर इसी तरह से इकोनॉमिकल एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए हमारे स्टेट में हर एक तरफ से सरकार की तरफ से प्रयत्न हो रहे हैं। एंड आपके आने से मुझे लगता है बैंकर्स विल टेक द मोर इनिशिएटिव्स, और चाहे वो डिजिटलाइज हो, चाहे वो लोन मेला हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी स्कीम्स हो, सभी लोग हमें सहकार्य करें। तो 100%, जैसे आपने 100% डिजिटल की बात की, 100% इम्प्लीमेंटेशन स्कीम में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज तक 80 डिपार्टमेंट ने स्कीम जितने लॉन्च किए हैं, मोर देन 63 डिपार्टमेंट्स वी हैव डायरेक्टली इन टच विद द एलिजिबल पर्सन, जिनके पास पहुंचने के लिए हमारे सभी ऑफिसर्स कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहकार्य बैंकर्स का मिल रहा है। कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल द बैंकर्स ऑल्सो, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। इससे भी ज्यादा सहकार्य मिला तो हम लोग आउटरीच और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा हम 100% कोशिश रहेगी कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए। हांव तुमकां सगळ्यांक जे जे लोन घेवपाक आयल्या हांगासर तांचें खूब खूब अभिनंदन करता। आज तुम्ही बँके कडल्यान आयदर तांच्या वेगवेगळ्या लोनांतल्यान वेगवेगळी लोन्स घेता आसतलेच, बट ताच्या भायरूय बी तुमच्या खातीर सरकारांतल्यो विविध योजना आसतल्यो, वेगवेगळ्या खात्यांतल्यो योजना आसतल्यो, ह्योय तुम्ही घेवच्यो। तुमकां सहकार्य करपा खातीर विशेष करून आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे प्रत्येक गावात जे शेनवारच्या ज्या पंचायतीन आसता, मुद्दाम तुम्ही आज लोन घेतला, 10 जाणांक तुम्ही सांगपाची गरज आसा, 10 जाणां कडेन तुम्ही उलोवपाची गरज आसा। पहिल्यान पयली तुम्ही लोन घेतल्या म्हणजेच तुम्ही, आम्ही तशें म्हणटा की तुम्ही स्वता एम्प्लॉय जाल्याच दुसऱ्यांक तुमच्या कडेन तुम्ही एम्प्लॉय जॉबाक लायता। त्याच पद्दतीन जर आम्ही प्रमोट करपाक लागले जाल्यार गोंयांत आनिकूय बी एम्प्लॉयबिलिटी वाडटली। म्हाका खात्री आसा, हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता की तुम्ही तुमचो स्वताचो व्यवसाय सुरवात करता, तुम्ही नवीन तुमच्या धंद्यात पदार्पण करता, त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन। तुमकां हांव शुभेच्छा दिता की हाज्याय फुडें तुमचो बिझनेस आनीक ग्रो जावचो, तुम्ही हाज्याय फुडें आनिकूय मोठो बिझनेस करचो। पण त्याच बरोबर हांवें तशें म्हटलें की प्रधानमंत्री म्हणजे केंद्र सरकाराच्यो सगळ्यो योजना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी सातत्यान प्रमोट करता। गोंय सरकारच्यो सगळ्यो योजना ज्यो आमी सातत्यान लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता। म्हणजे दिवपा खातीर खूब कितें आसा, सरकार दिवपा खातीर आसा, घेवपी हात फुडें येवपाक जाय। त्याचे हांवें म्हटलें पयल्याच पयलीं तुमचें अभिनंदन, कारण तुमी घेवपा खातीर आयल्या। आनी निश्चितूच म्हाका खूब बरें दिसता की आमी कोण तरी गोंयकार जो एंटरप्रिनर जावपाक, बिझनेसमॅन जावपा खातीर एक पावल फुडें मारता। सरकार सहकार्य करपाक तयार आसा। अशाच पद्दतीन तुम्ही उरलेल्या लोकांक आपल्या पर्यंत खूब फुडें काडटले आनी निश्चितच तुमच्या सारके गोंयांत आनिकूय बिझनेसमॅन तयार जातले। पण आमी उलोवपाची गरज आसा, आमी सांगपाची गरज आसा। आमी कितें करता हे 4 जाणांक कळपाक जाय, आमी लोन कित्याक घेतला तेंय कळपाक जाय। त्याच बरोबर आमच्या आसलेले बँके कडले रिलेशन आनिकूय ग्रो जावपाक जाय। निश्चितच रित्या आमकां बँक्स आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे सगळे जण सपोर्ट करपा खातीर सातत्यात आसा। या पॅन्डेमिकाच्या उपरांत आमी म्हणटा की नवीन नवीन धंदे, नवीन नवीन बिझनेसीस गोंयांत सुरू जावपाक लागलेले आसा आणि निश्चितच ताका तेंको दिवपा खातीर खास करून ऑनरेबल मिनिस्टर श्री डॉक्टर कराड जी जेन्ना हांगा येता तेन्ना आमची उमेद आनिकूय वाडटा आणि निश्चितच तीच उमेद घेवन आमचे उरलेले बँकर्सूय गांवागांवांतल्यान वयतले आणि डिजिटल लिटरसीच्या बरोबर वेगवेगळ्यो स्किमी सांगतले। हांव चड उशीर घेनासतना तुमकां शुभेच्छा दिता आणि खास करून या कार्यक्रमात तुम्ही उपस्थित रावली, सगळ्यांनी आपले स्टॉल्स हांगासर लायले त्या खातीर तुमकांय खूब खूब तुमचे अभिनंदन करता। परत एकदा या कार्यक्रमाक आयिल्ले सगळे बँकर्स आणि आमचे मिनिस्टर डॉक्टर कराड हांच्या नेटान ताळयो वाजून स्वागत करूया। ते मुद्दामून हांगासर आयल्या, हांव ताका देव बरें करूं। थँक्यू सर।
Sometimes we need such booster dose very often to build up our moral spirits. Bankers have always worked in coordination with the state administration, and we continue to work with coordination with the government. Sir, today we are going to distribute 45 sanction letters to 45 borrowers. One or two borrowers, for some reason or the other, they could not come. The total amount involved is 11 crores 43 lakhs, and the amount ranges from, sir, rupees 1 lakh, and the highest is 2.91 crores. Many customers have requested that their loan amount should not be told. So to protect the secrecy of the customer's transactions, we have decided that we will not tell the loan amount. But it is written on the envelope. So if sir is to see how much loan is granted, it is already written in all the envelope. I now request bankers to please line up the customers as I read the names. The chief guest, sir, will you please do the honors of handing the sanction letters now? Please, sir. You can stand there, the customer will come out, there is no issue. Yeah. And I would request the bank heads also to... Yeah, bank heads also, please join the customer. Sorry, I have mixed up all the banks, so a little exercise for the bankers to come up and down. First for C Metal Exports. It's a stand-up India loan by State Bank of India. State Bank Regional Head. Next is Reserve. It is a proprietorship against stand-up India. It's for 65 lakhs. 65. What business? 65 lakhs. What business? Next is Desertive. Against stand-up India, packaging of grocery items. Triumph Industries against stand-up India by Bank of India. Mr. Lincoln Rivero, educational loan by Bank of India. Suvina Divine Angel Hospital. This is sanctioned under Arogyam product, again by State Bank of India. Sonali Self-Help Group, State Bank of India. Sakhi Self-Help Group, State Bank of India. Next is Omkar Self-Help Group, Bank of India. Ms. Chanda Nadar, KCC Crop, Agriculture, State Bank of India. Mr. Shrikant Rane, KCC, State Bank of India, sir. I think Shrikant Rane is absent, so you please take. Navnath Malik, Central Bank of India, KCC loan. Sandeep Ladu Naik, KCC, Central Bank of India. Messrs. OKP Composites, MSME loan by State Bank of India. Manufacture of fiber glass composites, that is the activity.
Kirti Karkotkar, MSME, Canara Bank, food processing. Mr. Nitin Shirodkar, MSME, Canara Bank, transportation.